me, is the screen visible or not? Yes, it is visible. That's nice. Anyway, so let me start then. First of all, ethical consideration and then the medical manuscript writing. Okay, so ethical consideration, the first thing that person asks is, what is ethics? And what do we mean by ethics? And to be very honest and very direct and blunt with you, ethics means do not be a bad person. Do not take the right of another person. Do not harm them. Be good to people and always do whatever you're doing for the good of the people. That's it. And this is a whole 2.5 line definition. If you want, you can memorize it. But then again, do not be a bad person, and that's the ethics. And that's literally it. If you stop being a bad person, that's all that we want from you, nothing else. Anyways, now the next slide. What are the objectives of ethical considerations? Everything in this universe has a purpose or objective, something that they're meant to be fulfilled. Why do we have ethics? Why are ethics in research? And what are the main objectives that we have to complete for ethics in the research? The first one is protection of human participants. Now, we write human participants, protection of human. Why? Because there are some researches which are conducted on rats and which have the potential harm and the potential capacity to kill the rats. But that's a necessary risk because we cannot take risk on the human life. We consider human life to be the most sacred, and so we protect the human participants. And instead, we do experiments on rats, which are very lethal experiments. If they are safe there, then we move towards human participants. That known as protection of human participants. Now, the second is serves the interest of group, individual, and societies. The interest is the main highlighted word here because it should always help and it should always be for the betterment of society, not for your own personal preference that I want to see what effect does cutting or transecting the certain part of brain has on human. No, I mean, it's like, why are you doing this? The main thing is, why are you doing this whole research? Is it for fun? Is it just so that you can get a job at a hospital or something? No, it's for the betterment of society. It's for the betterment of humanity. It's so that we can learn from research and then apply it to further better our scientific understanding and our medical system. It's not for your own personal gains. That's the main thing here. And lastly is ethical soundness. Now, let's say you're conducting a research and it does not harm human participants directly. Okay. You're conducting a research and it also supports the interest of group and societies and humanity. Okay. But still, we have to see that if the research that you have conducted is in its best way or not. If were there any other ways that or any other measures that you could have taken to prevent further damage to human life? That's known as that is known as ethical soundness, which basically says that क्या आपने सारे जो स्टेप्स थे और जो सारी जो जरूरियात थी वो पूरी कर ली कि आपसे किसी और ह्यूमन को हार्म ना हो, और उसके बावजूद फिर भी थोड़ा बहुत हार्म हो जाए तो चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन अगर आपने अपनी तरफ से फुल वो करना है कि आपका वो हो, आप कभी कोई वो ना करो हार्म, और आप आपकी अपनी तरफ से लाइक 100% आपने देना है कि आप ह्यूमन लाइफ को जितना बचा सकते बचा सको। उसके आगे तीन पार्ट्स होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, वही बात कि आपने मिनिमल जो ह्यूमन है उसको वो करना है, अपना रिस्क पे लेके जाना है, जो सेफेस्ट तरीके एक्सपेरिमेंट हो सके और उससे रिजल्ट्स आ जाए ना, यू हैव टू कंडक्ट दैट। कॉन्फिडेंशियलिटी, यू डोंट हैव टू से कि यार हमने 20 पेशेंट्स पकड़े एंड अहमद, हमजा, शानजे, फातिमा, ये सब लोग थे हमारे पेशेंट। नो, जस्ट से 20% पेशेंट्स पकड़े, दैट्स इट। मे बी वो जो पेशेंट है वो ना चाहता कि लोगों को पता चले कि उसको डिजीज है, या मे बी उसके घर वाले इतने सपोर्टिव ना हो साइंटिफिक नॉलेज के, तो वो रिसर्च में से पार्टिसिपेट करने से मना करे हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट। प्राइवेसी आजकल बड़े वो एक हॉट डिबेटेड टॉपिक है, क्योंकि जो आपकी इंटरनेट की वो होती है कंपनीज, वो भी प्राइवेसी नहीं छोड़ती है आपकी, और अगर हम भी नहीं छोड़ेंगे तो फिर बात होगी ना, हम भी वो कॉर्पोरेट बिजनेस वाले बन गए, राइट। लास्ट होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। कोई बंदा आया है, आप उसको ड्रग दे रहे हो जो कि पोटेंशियली उसको हार्म कर सकती है, और आपने उससे इजाजत नहीं दी, तो इज इट एथिकल? लाइक ये तो वही बात होगी ना, बगैर
किसी की मर्जी के आप किसी को फोर्स में कोई चीज करवाओ, तो इसको अगर आप पैसे एक्सटॉर्ट करवा रहे हो तो उसको एक्सटॉर्शन कहते हैं, जो क्राइम होता है। सो इसलिए कॉन्सेंट लेना कि क्या हम इंजेक्ट कर दें ड्रग, क्या हम ये ऑपरेशन कर दें, क्या हम आपके ये मिड लाइन पे पूरी इंसिजन दे के अंदर लेप्रोटमी कर दें, बहुत जरूरी होता है। और स्पेशली इन हाई रिस्क वो सर्जरीज, अगर आप हाई रिस्क सर्जरी का आपने कॉन्सेंट नहीं लिया, पेशेंट को कुछ भी हो गया है, फैमिली आपको जाके कोर्ट में स्यू कर देगी, फिर बैठ के उनके लाखों रुपए भरने पड़ेंगे आपको। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सिंपल बाय वे ऑफ कहते हैं लुकिंग बैक एट हिस्ट्री, हमारे पास जोसेफ मेंगली है। जोसेफ मेंगली की ये चीज है कि ये वो था अपना जो नाजी थे ना, उनका एक डॉक्टर था, जिसको कहते हैं निक नेम्ड एज एंजल ऑफ डेथ। क्यों? बिकॉज दिस पर्सन इज सो सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ज्यूज। ऑशविट्स जो उनका कैंप था, वर्ल्ड वॉर 2 में एक डिटेंशन कैंप था जहाँ पे ज्यूज प्रिजनर्स होते थे। इसने वहां पे डेडली एक्सपेरिमेंट्स लाइक इस तरह के लोगों को स्पेसिफिकली के बड़े गंदी इन्फेक्शन दे के उनको ट्रीटिंग करता था कि ताकि पता कर सकेंगे अगर ट्रीट नहीं करेंगे क्या होगा, बंदा मरेगा। ऑब्वियस गलत बात है, ऐसा नहीं करना होता आपने। मोर ओवर इसने, इसका जो सबसे मशहूर एक्सपेरिमेंट है कि इसने 2 डॉग्स के सर को एक बॉडी में जोड़ा था, और वो 2-3 दिन बाद एक्सपायर कर गए थे। और ये तो वो है जो कि सक्सेसफुल हुआ था, इसने इसके अलावा कोई 100 डॉग्स और थे जो मर गए थे करते करते। तो ये चीजें आपने नहीं करनी होती, इसलिए इसको इसकी जो शक्ल है इस बंदे की, ये एसोसिएटेड है एथिक्स के उसके साथ, वायोलेशंस के साथ। और ही इज लाइक रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्स्ट पर्सन जो साइंटिस्ट एवर था, क्योंकि एथिक्स के लिहाज से जिसने किया था सब कुछ। एथिक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर हमने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसी बंदे के क्या? देख के कैसे लोग भी होते हैं। हाँ। ख्वाजा भाई, आई वुड आस्क कि आप अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। थैंक यू। व्हाट आई वाज बेसिकली सेइंग वाज कि हेलसिंकी डिक्लेरेशन हमने बनाई थी फिर 1964 में, जो WMA वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, उसने हेलसिंकी डिक्लेरेशन बनाई। और इसके ये सारे हेलसिंकी से बनते हैं सारे वर्ड्स, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सिंपल सी चीज ये है कि डू नॉट बी अ बैड पर्सन एंड दैट्स इट। आपने लिटरली यही करना है, और आपने कुछ भी नहीं करना। लेकिन जो जो ऊपर मैंने बताया ना कि उनकी वो प्राइवेसी को मेंटेन रखो, उनके उसको खराब ना करना, रिस्क ना पहुंचाओ, इस सारी चीजें देखो, ह्यूमन हेल्थ, इक्वालिटी, सबको बराबर करना, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म एक्शन, एक्शन और गोल अपने देखो, इंटरवेंशन देखो क्या है, तो वही टिपिकल चीज है सारी। उसके बाद जो एथिक्स है उसके मॉरल प्रिंसिपल होते हैं। जब आप डॉक्टर बनते हो ना तो आपने एक ओथ लेते हो, हिपोक्रेटिस ओथ। उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि डू नो हार्म, पेशेंट को आपने हार्म नहीं करना। तो इसके जो 4 मॉरल प्रिंसिपल होते हैं ना, हर डॉक्टर को ये 4 मॉरल प्रिंसिपल होता है, अगर नहीं पढ़ाए तो आपको पढ़ाएंगे, थर्ड ईयर में होते हैं ये, बिहेवियरल साइंसेज में। नंबर 1 होता है आपने किसी पेशेंट को हार्म नहीं करना। नंबर 2 होता है आपने हमेशा इंसानियत की खिदमत करनी है। नंबर 3 होता है आपने पेशेंट जो है उसकी इजाजत लेनी, पेशेंट की अपनी बॉडी है, उसकी अपनी मर्जी है, आप उसकी मर्जी के बगैर उसको कुछ नहीं दे सकते, बेशर्त कि वो मर रहा हो, जान उसकी बचानी है। उसके बाद अगर आप कहते हो कि यार ये सर्जरी ले लो, ये अच्छी है, इसमें तुम्हें डायबिटीज या हार्ट फेलियर का चांस कम हो जाएगा, वो कहते हैं नो, यू हैव टू रिस्पेक्ट द डिसीजन, आप नो कर दोगे, बेशर्त पेशेंट मर रहा हो, मरते हुए को जान बचानी है बस, और कुछ नहीं। अगला जस्टिस है, जस्टिस है कि आपने सब कुछ फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये नहीं कि अगली एक वो कहते हैं जो पेशेंट है वो थोड़ा आपका जानने वाला है या वो अमीर है तो आप उसकी तरफ ज्यादा माइल हो जाओ, और आप उसको 10-12 लोग लाइन में कटा के तो उसको पहले चेक करो ना। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, और बिल्कुल जस्टिस होना चाहिए। द ओनली टाइम जब आप नहीं कर सकते ना जस्टिस इज, उसको कहते हैं ट्रियाज। ट्रियाज कहता है कि जो पेशेंट है, एक पेशेंट आपके पास आया है जिसका हार्ट फेलियर हुआ है, वो कार्डियक अरेस्ट में किया हुआ है, ठीक, उसको लोग CPR दे रहे हैं। दूसरा पेशेंट आया, वो कहता है मेरे सर में बहुत दर्द होती है, माइग्रेन का पेशेंट है। आप किसको पहले ट्रीट करोगे? कार्डियक अरेस्ट को। उसको अगर 5 मिनट में आपने वो एपिनेफ्रीन और फ्लूइड्स ना दी, और उसको अगर उसको फिब्रिलेशन गई तो आपने उसको डीफिब ना किया, वो बंदा अल्लाह के पास पहुंच चुका होगा। और 5 मिनट बाद जब आप माइग्रेन वाले की कंप्लेन सुनोगे तो उसको फिर भी माइग्रेन हो रहा होगा, बिल्कुल उसी तरह हो रहा होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस माइग्रेन की आपने कंप्लेन सुनी होगी। तो आपको ना लेवल वाइज रखना पड़ता है कि ये बंदा मर रहा है सबसे पहले, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह। जो IPD होता है, IPD मीन इन पेशेंट, वो सबसे पहले उनको देखते हैं क्योंकि वो वार्ड में एडमिटेड है, तो वो सीरियस पेशेंट है। जो OPD होता है, आउट पेशेंट, जो वैसे ही लोग आए होते हैं अपॉइंटमेंट लेके, उनको थोड़ा बाद में देखते हैं अगर आपके पास टाइम ना हो। यूजुअली ये होता है कि डॉक्टर्स उन्हें डिवाइड किए होते हैं इन पेशेंट और आउट पेशेंट में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रिया जो है वो, इफ यू आर इन फर्स्ट या सेकंड ईयर, आपको नहीं पता होगा,
थर्ड ईयर में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एथिकल कंसिडरेशन, हम चेक कैसे करते हैं रिसर्च एथिकल है। जो रिसर्च मैंने कहा एथिकल है, क्या पता ये जो सामने मेरे जो लोग हैं, जैसे जैसे कि अपना यहाँ पे मेरे पे मोहम्मद अहमद का नाम शो हो रहा है, क्या पता मोहम्मद अहमद भाई कहेंगे रिसर्च एथिकल नहीं है, मैं कहूँ है। कैसे डिसाइड करते हैं? उसके लिए एक एथिकल रिव्यू बोर्ड बनता है, हर इंस्टीट्यूशन में होता है, हर कॉलेज या हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में तो हर किसी में होता है, जो कि टीचिंग हॉस्पिटल हो। नॉर्मल आपके जो देहात वगैरह में होते हैं ना हॉस्पिटल, उनमें नहीं होता। जिस हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड है, उसके साथ ये होना ऑलमोस्ट मस्ट होता है। To be honest, बात है। इसमें ये होता है कि फर्स्ट डिफरेंस होने चाहिए कौन कौन। नंबर वन चेयरमैन, चेयरपर्सन जो हेड होता है। नंबर टू बेसिक मेडिकल साइंस, यानी आपके एनाटमी, फिजियो, पैथो, फार्मा, इन सबको कहते हैं, बायोकेमी, सबको बेसिक साइंस कहते हैं, उसका एक होता है प्रोफेसर। अगला होता है क्लिनिशियन। क्लिनिशियन होती है क्लिनिकल साइंस, जो हॉस्पिटल में जाके करते हैं, जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी, साइकाइट्री, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, सारी क्लिनिशियन है। फिर एक होता है लीगल एक्सपर्ट। लीगल एक्सपर्ट इसलिए क्योंकि अगर पेशेंट कोर्ट में ले जाए आपकी रिसर्च के, ये भी रिसर्च में ये मसले, और आपके पास लॉयर ना हुआ, तो आप केस हार सकते हो, क्योंकि लॉयर बड़े उनका ना अच्छा वो होता है, नॉलेज होती है अपनी फील्ड की, हर किसी की अच्छी नॉलेज होती है अपनी फील्ड की। तो वो आपकी रिसर्च में गलतियां निकाल के बोल देगा कि ये अनएथिकल थी रिसर्च, और आप केस हार गए तो पैसे भरने पड़ते हैं। और लास्टली तो सोशल साइंसेज या एंथ्रोपोलॉजिस्ट, या इनको सादे अल्फाज में कुछ लोग एक्टिविस्ट भी कहते हैं, लेकिन असल में डिफरेंट होते हैं। तो ये होता है सोशल साइंसेज वाला। आपने सुना होगा आजकल बड़ा प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा होता है, सोशल मीडिया कैंपेन्स चल रही होती हैं, वो उसको अगर थोड़ा साइंटिफिक कर दो, तो वो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट या सोशल वर्कर्स होते हैं। असूलन ये पांच लोग होने चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, एक चेयरपर्सन होता है, एक क्लिनिशियन होता है, और अगर कोई बहुत ही अच्छी सोसाइटी वो कॉलेज हुआ तो वहाँ ये होता है बस। इवन मेरे पास आरएमसी में भी ये तीन है, बाकी दो नहीं है। और मैंने ख्याल पाकिस्तान में कोई भी ऐसा वो है कॉलेज सिवाय आगा खान के, जिसमें शायद ये दो हों भी तो। लेकिन खैर, हमारा काम था बताना। अगली चीज एथिकल अप्रूवल फॉर्म। अच्छा हाँ, अगर फॉर्म नजर नहीं आ रहा इसमें मैं जूम इन करूंगा। इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो फॉर्म होता है इसमें होती है डेट, आपने कब एथिकल अप्रूवल लिया। ये ऊपर जैसे हमारा आरएमयू का फॉर्म है, तो ऊपर हमारी सोसाइटी और आरएमयू का लोगो लगा हुआ है। फिर होता है रेफरेंस लेटर नंबर। अगर कोई बंदा आपकी यूनिवर्सिटी या सोसाइटी कॉल करके पूछे कि ये रेफरेंस नंबर लेटर क्या आपके पास है अवेलेबल, उनके पास रिकॉर्ड होता है पूरा कि हाँ इसमें ये स्टडी इस डेट को इस ऑथर और इस सुपरवाइजर के साथ अप्रूव हो चुकी है। इतनी डिटेल होती है। फिर आता है आपका टाइटल। टाइटल के बाद डिक्लेरेशन है कि हमने साइनॉप्सिस वगैरह बना दिया है, हम कोई बोंगियां नहीं मारेंगे, इसमें कोई रिसर्च में कोई गलती नहीं है, किसी को हार्म नहीं करेंगे, फला 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 सारा। और हेलसिंकी वाला भी हमने मान लिया। उसके बाद आता है आपके पास ये सिग्नेचर और एकेडमिक ईयर और नाम स्टूडेंट। ये बेसिकली आप सब ऑथर्स बता रहे हो कि हम सब ऑथर्स हैं, और हम इसको मानते हैं कि हमने ये रिसर्च इस तरह कंडक्ट करेंगे। सुपरवाइजर। सुपरवाइजर होता क्या है? अ सुपरवाइजर इज बेसिकली अ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, ये पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर। यूजुअली पीजीटी इसको नहीं रखते, आपको मिनिमम प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर या रजिस्ट्रार होना चाहिए, ये चार चीजें होती हैं। लेकिन कभी कभार पीजीटी को रख लेते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएट उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए बंदे के पास। एंड दे विल बेसिकली सुपरवाइज या सी आपकी रिसर्च, कि आप कोई गलती ना करो। इन एक्चुअल प्रैक्टिस देयर विल बी मैनी सुपरवाइजर जिनकी नॉलेज शायद आप लोगों के बराबर ही हो सकता है, कुछ को रिसर्च बिल्कुल नहीं अच्छी आती होती, भूला पड़ा होता है, तो कोई बात नहीं, लेकिन इट्स अ नेसेसिटी, तो रखना पड़ता है। And I have in my like time worked with many supervisors, and some of them are really good and some are really bad. तो बड़ा ये टेक्निकल स्टेप है, देख के करना होता है। स्पेशली सुपरवाइजर ऑथरशिप के काफी भूखे भी होते हैं। तो साफ सी बात है, फैक्ट्स है, एंड आई एम गोना शेयर देम विद यू। तो बी कहते हैं बी वेरी ऑफ द सुपरवाइजर्स। उसके बाद उनका सारा स्टैम्प शैम्प करनी होती है। फिर आता है रिव्यूवर। रिव्यूवर होता है ये, जो मैंने कमेटी वाले बताए थे बंदे, ये जो कमेटी है ना, पांच डिफरेंट फील्ड, ये होते हैं रिव्यूअर्स। तो यहाँ पे जो रिव्यूअर्स है हमारे पास, जैसे देखो तीन है, एक बेसिक साइंस, एक चेयरपर्सन और एक क्लिनिशियन। तो इन तीनों का सिग्नेचर होगा तो आपका रिसर्च एथिकल हो जाएगी। अगर ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं और एक बंदा रिजेक्ट करता है, तो फिर ये लोग यूनानिमस डिसीजन करके देखते हैं कि अगर दो लोगों ने एक्सेप्ट किया, एक ने रिजेक्ट किया, तो रिजेक्ट वाले की जो वो थे कंप्लेंट्स उनको आप रिवाइज करते हो, तो ये आपको वापस एक्सेप्ट कर देता है। तो ये एक और चीज होती है। ठीक। उसके बाद हमारा यहाँ पे एथिक्स खत्म हो जाता है। आई थिंक हाँ 20 मिनट या 15 मिनट का लेक्चर था छोटा सा। मुझे बता दो कि किसी के कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो बता दे अभी, वरना फिर मैं मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाऊंगा। चैट बॉक्स में डाल दें क्वेश्चंस।
हम जो भी क्वेश्चन है चैट बॉक्स में डाल दें। नाहिल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आपने जिसने क्वेश्चन करना है आप अनम्यूट भी कर सकते हैं या चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन ड्रॉप कर दें। अच्छा, मैं फिर पहले ना हसन जावेद का दे देता हूँ आंसर, मिनाहिल को हम इसके बाद क्लियर करते हैं। व्हाट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथर एंड को ऑथर? अच्छा हाँ, रिसर्च में दो किस्म के ऑथर्स होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। जो रिसर्च है ना, अगर लेट से मैं कोई भी लगाता हूँ, मैं अपनी कोई स्टडी निकाल लेता हूँ। अब ये स्टडी में ये होता है कि ये पूरी स्टडी निकली एक, इसके ना डिफरेंट ऑथर्स होंगे। अब जो सबसे फर्स्ट ऑथर है, जो कि फैजान फजल लिखा हुआ है, दिस इज नॉट मी, दिस इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसका नाम भी फैजान है। दिस पर्सन इज द फर्स्ट ऑथर। ठीक। उसके बाद ये सारे के सारे को ऑथर्स आते हैं। अब ये जो वो बना हुआ है अपना एनवेलप, एनवेलप का मतलब है इस बंदे ने अपना ये आर्टिकल सबमिट करवाया है इस जर्नल को, इसे कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर। तो प्राइमरी ऑथर, ये कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है फर्स्ट, तो कोई भी हो सकता है। और ये सारे जो है ये होते हैं को ऑथर्स, ये सेकंड थर्ड फोर्थ। फिर एक और होता है जिसमें होता है कि आपके जो प्राइमरी ऑथर है वो एक से ज्यादा होता है। वो तब करते हैं जब आपने जो प्राइमरी ऑथर्स हैं उन दोनों ने, कि दोनों ने या फर्स्ट या सेकंड ऑथर ने बिल्कुल सेम लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन की हो। लेकिन उसमें एक मसला ये आता है कि आपको प्रूफ करना पड़ता है कि दोनों ने सेम लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन की है। सो इस खप में जाने से हम लोग फिर ये करते हैं कि अगर दो लोग सेम लेवल ऑफ काम करें तो एक रिसर्च में एक को फर्स्ट कर दिया, दूसरे में दूसरे को फर्स्ट कर दिया। ये हो गया। उसके बाद पाकिस्तान में टॉप थ्री ऑथर्स को क्रेडिट मिलता है, बाकी को नहीं मिलता, मैं भी बता रहा हूँ, टॉप थ्री को मिलता है। यूके यूएस सब जगह जो है अपना, सॉरी यूएस में, सॉरी यूके में टॉप सिक्स को क्रेडिट अच्छा वाला मिल जाता है। बाकी सबको नॉर्मल क्रेडिट मिलता है, गुजारा। और जो यूएसए है, यूएस में वो देखते हैं कि आपकी स्टडी है ठीक है, अगर आप फर्स्ट टू में हो अच्छी बात है, आपका वो प्रॉपर स्टडी काउंट होती है। फर्स्ट टू में नहीं हो, वो कहते हैं एवी एवी गैर स्टडी है, वो उसको काउंट नहीं करते। ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट, अगर कुछ नहीं समझ आए तो डू आस्क। अगला क्वेश्चन है हसन भाई भाई। यार हाँ, बहुत बहुत मांगते हैं सुपरवाइजर्स, मैं बता रहा हूँ सुपरवाइजर, आई हैव हैड सुपरवाइजर जिन्होंने अपना सवाए बीच में ऑब्स्टिकल्स खड़े करने के कुछ भी नहीं किया, और फिर भी उनके पास लाइक उनके मतलब हिम्मत थी कि वो थर्ड मांगते और अपने बेटे के लिए सिक्स मांगते। जैसे रियल स्टोरी, जो मेरे आर्टिकल, मेरे सबसे पहले आर्टिकल खुलती है। और तब से मैंने सीखा था कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, आप सुपरवाइजर को वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, बेशर्त आपका लाइक पहले ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो। यू कैन नेवर गो इन एंड थिंक कि सुपरवाइजर जिसको आप कंप्लीटली जानते नहीं हो वो आपकी हेल्प करेगा। इतने अच्छे लोग नहीं होते। ये मैं प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ और वो लेसन दे रहा हूँ। को ऑथर होने के लिए मैंने भी बताया यूजलेस नहीं होता। अगर आप यूके जाना है टॉप सिक्स सही है, पाकिस्तान में टॉप थ्री है, यूएस में फर्स्ट सेकंड, और फिर बाकी तो फिर वो इतना काउंट नहीं करते। तो देख लो जहां तुमने जो करना है कर लो। स्टार्टर्स की राय से टॉप टेन कुछ भी मिल जाए, टॉप टेन की बात ना लेना, टॉप टेन के बाद फिर एरा गैरा होता है। टॉप टेन मिल जाए तो सही है, बेस्ट है, चलता है। बाकी कुछ लोग हैं जो 12वीं 13वीं ऑथरशिप ले रहे हैं जस्ट टू इंक्रीज देयर पब्लिकेशन नंबर, जैसे अभी मेरी आई थिंक 8 है। तो उसमें से आई थिंक एक या दो में मैं बिल्कुल एंड में जाके आता हूँ, 10 के बाद भी आता हूँ। तो इट वॉज बिकॉज मैंने सिर्फ रिसर्च रिव्यू की थी, एक दो दिन का काम किया था। तो ये सीन था। बाकी मि- मिनाहिल ने कहा है इज मेंटर सुपरवाइजर द सेम? नो नो नो। मेंटर इज बेसिकली समवन जो आपको रिसर्च सिखाता है, सुपरवाइजर इज समवन जो आपकी रिसर्च को सुपरवाइज करता है। सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट है, मेंटर रिक्वायरमेंट नहीं होती। सुपरवाइजर ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है, मेंटर इज जस्ट समवन, अगर आप लकी हो तो आपको मिल गया जो आपको रिसर्च सिखा रहा है। मेंटर इज ऑलवेज कहते हैं वो गोना हेल्प यू आउट एंड आपके सब क्वेश्चन को आंसर करेगा, वो रियल मेंटर होता है। सुपरवाइजर का होता है कि वो आपको कभी कभार हफ्तों तक गोस्ट भी कर सकते हैं, उसका कोई ऐसा ना वो नहीं होता, अपना स्टेक नहीं होता रिसर्च में। तो स्पेशली अगर आप उसको छठी ऑथरशिप दे रहे हो, यूजुअली सुपरवाइजर सिक्स ऑथरशिप लेते हैं, लेकिन वही मैंने कहा अगर थोड़े से वो होए, अपना पेटी होए, तो थर्ड भी लेते हैं। बेशक अगर उन्होंने काम किया अच्छा खासा तो थर्ड बनती है उनकी। देन हाउ अबाउट ड्राफ्ट, वैसे पर्सनली, लेकिन मैंने कल भी बताया था, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, ये थी अपना बेसिक्स ऑफ रिसर्च की मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी। कॉन्सिक्वेंटली उसमें जो पहली तीन अपनी मैंने वीडियोस डाली थी वो थी ही उसकी
के ऊपर। क्यों? क्योंकि साइनॉप्सिस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने ये ये है वो अपना प्लेलिस्ट 30 वीडियोस वाली सामने। ये मैंने चैट में भी लिंक शेयर कर दिया। ठीक। और हमारे पास 5 मिनट रहते हैं। आई वांट कि इस पार्ट में एथिकल को खत्म करें। उसके बाद कोई क्वेश्चन वगैरह अगर रहते हैं एथिकल के तो फिर वो सिर्फ मैंने स्टार्ट पे रहे। यस, मेंटर का डिपेंड करता है मेंटर कितना आप गाइड कर रहा है। बिकॉज जैसे मैं जब मेंटर हूँ पैल का, मैं पैल मींस पीयर असिस्टेड लर्निंग, हमारे पास आरएमयू में एक प्रोग्राम है जिसमें फाइनल ईयर के फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स छोटे जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, उनको सिखाते हैं रिसर्च। तो जैसे मैं हूँ, मैंने सबसे आखिरी ऑथरशिप ली हुई है क्योंकि मुझे ऑथरशिप का नहीं, मुझे रिसर्च सिखाने का है सब कुछ। आई नो सम मेंटर्स जो थर्ड लेते हैं, इवन फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट पे भी लड़ चुके हैं कुछ मेंटर्स। तो ज्यादातर बच्चे ही करते हैं, लेकिन उन्होंने एनालिसिस किया होता है, राइटर में हेल्प की होती है, तो वो ऑथरशिप लेते हैं। और authorship भी तो इट्स एथिकल कि आप मेंटर ने इतनी टाइम आप आए तो आप पूछ लें। हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि मैं हमारे थे भी 5 लोग साथ, छुट्टी मेरी इजी है। यार आई बेसिकली ट्राइड एक दफा ये करना भी। तो आई वुडंट से कि स्टैंड अप करके लड़ो या ऐसा कुछ करो। बट आई वुड से इसके उनको थोड़ा सा एहसास दिलाओ कि यू कांट बी टेकन एडवांटेज ऑफ, एंड तुम्हें थोड़ा बहुत आता है। और बाकी ये कि अपना अगर उसे सुपरवाइज किया और वो सिक्स मांगे तो ठीक है, तो बनता है। थर्ड वो कह रहे हैं तो थोड़ी सी उनसे बहस टाइप कर लो। लेकिन मसले के इन दी एंड ना, यू नीड अ सुपरवाइजर, द सुपरवाइजर डजंट नीड यू। उनकी जॉब लगी हुई है, उन्होंने जहां अपने कैरियर में पहुंचा था वो पहुंचे हुए हैं। बशर्त के उन्होंने बहुत अच्छा कोई लाइक प्रोग्रेसिव और मेहनती सुपरवाइजर है, तो उनका बस जहाँ जॉब लग गई वहीं पे खुश होंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा ना लड़ना। हाँ सच्ची बात है, आई एम लाइक कम्प्लीटली ब्लंट अबाउट दिस, क्योंकि मैं आसपास देखता हूँ इतना होते हैं लोग हमारे आरएमसी में भी, बहुत ज्यादा केसेस होते हैं। सो इसलिए लाइक मैंने एक और वर्कशॉप में कहा था कि तुम लोगों को आरएमसी में सुपरवाइजर चाहिए, आके मुझे बता दो। तो मैं फिर उनको बताता कि कौन से अच्छे सुपरवाइजर, कौन से बुरे हैं, कौन से लोगों को अवॉइड करना है। 2 हफ्ते में 400 रिस्पॉन्स दिए गुड वो कैंपेनिंग के थ्रू। मेरे आसपास जाने वाले बड़े कॉन्टेस्ट जाने वाले अच्छे लोग थे, उन्होंने फटाफट फिल करा। डेली के 15-20 फॉर्म फिल होते थे। और हमारा 15-20 फॉर्म भी नहीं बल्कि 30-40 फॉर्म शायद फिल होते थे, और हमारे 400 रिस्पॉन्सेज 2 हफ्ते में आ गए थे। एंड आई हैव नोन रिसर्चर्स जिनको पूरा साल लगे था 300 रिस्पॉन्स लेते लेते। इट ऑल डिपेंड्स। बाकी क्वेश्चनर का रिस्पॉन्स कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। बाकी सब आपका हफ्ते का काम होता है, हफ्ता चलो 2 हफ्ते का काम होता है, लेकिन क्वेश्चनर का रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करना मुश्किल काम है। ऑलवेज ट्राई छोटा क्वेश्चनर हो, 15 से 20 से ज्यादा सवाल का, 20 से 10 सवाल तो हो ही ना क्वेश्चनर में कभी। और कोशिश करो कि कहते हैं वो सवालों को जितना कॉम्पैक्ट कर सकते हो करो। और लोगों को खुली ऑप्शन नहीं देनी, डिस्क्रिप्टिव सवाल नहीं करने के नीचे फिल इन द ब्लैंक्स हो। हमेशा एमसीक्यू टाइप सवाल दिया करो, लोग पता नहीं क्या क्या जवाब लिख के जाते हैं। While presenting proposal ethical approval team asked for data analysis. यार डेटा एनालिसिस आपको आना चाहिए, आपने किस तरह एनालाइज करना है, आपको बेसिकली पूरी स्टडी को बताना चाहिए, सिनॉप्सिस आपके पास होना चाहिए पूरा कि आपने किस तरह संभालना है। डेटा एनालिसिस के लिए भी ये जो ऊपर मैंने भेजी है प्लेलिस्ट, ये बहुत है। इसमें 8 वीडियोस है एनालिसिस की। उसमें डॉग्स बने होंगे उनके थंबनेल में, बहुत अच्छी है। इससे इसके अलावा आप इससे बेहतर कंसाइज रिसोर्स मुश्किल है मिले। तो डेटा एनालिसिस का बेसिक्स प्रिपेयर कर लो, बाकी खैर है।
एंड आई थिंक मीटिंग खत्म हो जाने वाली है, सो दिस वुड बी अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। बाकी नेक्स्ट वाली मीटिंग में इंशाल्लाह मैन्युस्क्रिप्ट पे हम लोग बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।